and Assalamu alaikum student. Today the date is 16 June 2020 and the day is Tuesday. We have discussed about the plant cells. Hopefully you have done your work on notebook. Now we are going to start our next topic, which is about the typical animal cells. But before studying the topic, we have think about it. There are the questions and let's find their answers. Identify a part of a plant cells which is not found in an animal cells. Support your answer with a reason. Write down the answer of this question. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हेडिंग आपने देनी है क्लोरोप्लास्ट. आंसर इसके नीचे आपने लाइन लिखनी है. प्लांट्स कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट ट्रैप्ड by the chlorophyll in the chloroplast. Animal cannot make their own food. आंसर आपने लिखना है. हेडिंग आपने देनी है क्लोरोप्लास्ट. लाइन आपने लिखनी है प्लांट्स कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट ट्रैप्ड by the chlorophyll in the chloroplast. Animal cannot make their own food. In which part of a plant are cells with chloroplast most likely to be found? Answer leaves. Answer leaves. आपने think about it. आपने similarly आपने अपनी notebook पे पेज नंबर लिखना है 9 और think about it. आपने क्वेश्चन A पार्ट B पार्ट दोनों के आपने आंसर उसके ऊपर नोट करने हैं. नेक्स्ट इज द अ टिपिकल एनिमल सेल. Human cheek cells are examples of animal cells. To observe human cheek cells, gently scrape the inside of your cheek with a clean toothpick and observe the cheek cells under a microscope. Do they have a regular shapes like typical plant cells? Do they have the same cells parts as plant cells? ठीक है, आपने ये आपकी एक एक्टिविटी दी गई है. जब आपके स्कूल इंशाल्लाह खुलेंगे तो हम ये एक्टिविटी इंशाल्लाह लैब में परफॉर्म करेंगे, जैसे हम पहले भी लैब में परफॉर्म करते रहते हैं. तो जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ये एक्टिविटी लैब में परफॉर्म करेंगे. The simplified diagram below show a typical animal cells with some of its cell parts. हमारे पास ये एक एनिमल सेल्स की डायग्राम दी गई है. इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं. हमारे पास एक लार्ज राउंडेड शेप में आपके पास एक सेल नज़र आ रहा है. इस सेल की हमारे पास सिर्फ एक ही वॉल है जिसको हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है. जबकि आपको पता है कि प्लांट सेल में हमारे पास 2 डबल लाइंस थी. आउटर लाइन को हम लोगों ने सेल वॉल का नाम दिया था और इनर को हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था. यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस साइड पर पड़ा हुआ था. जो सेंट्रल स्पेस थी वो किसने ऑक्यूपाई की हुई थी? सेंट्रल स्पेस वाज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल्स. बट इन एनिमल सेल्स देयर आर द स्मॉल येलो सर्कल्स आर कैन बी सीन. These small yellow circles are known as vacuoles. Cytoplasm. This is the cytoplasm in which all the material is embedded, and there is the central part which is occupied by the nucleus. Parts of a typical animal cells. Note that a cell is 3-dimensional and not flat. ये सेल एक 3-dimensional सेल है, इसको फ्लैट की फॉर्म में नहीं लिया गया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसके कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. द टेबल बिलो डिस्क्राइब्स सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल. कौन कौन से हैं वो पार्ट्स ऑफ अ सेल? न्यूक्लियस. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी of the cell including cell repair. It contains thread-like structures called chromosomes which are made of DNA, deoxyribonucleic acid and proteins. Genes are part of chromosomes which store information to be passed on from one generation to the next. ये पॉइंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में कल वाले लेक्चर में इसको स्टडी किया था. नेक्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like and contains
other cell parts such as nucleus. New materials are constantly being made and broken down in the cytoplasm. It almost fills the whole animal cells. Cell membrane. It is a thin layer that controls the movement of material into and out of the cell. It is partially permeable, that is, it allows only certain material to pass through. Vacuoles. They are tiny spaces the cytoplasm containing food, water, waste materials and other substances. The vacuoles are usually small and numerous in an animal cell. ठीक है, जो plant cell में there was the central space occupied by the large vacuole, but in animal cell there are many small tiny vacuoles that is present inside the cells. Science attributes. Genes determine many characteristics or traits such as height and the color of the eye, skin and hair. These traits are passing from parents to their offspring. यहाँ जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जीन्स किसे कहते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये इंफॉर्मेशन हमारे बेबीज़ में जाती है हमारे, और वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम ये क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर बेबी का कोई भी करैक्टर लाइक आई कलर या हेयर कलर कुछ भी अगर उसके अपने पेरेंट्स के साथ मिलता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी जीन्स के अंदर स्टोर होती है और जीन्स ही उस इन्फॉर्मेशन को बेबीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। देयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। क्रोमोसोम सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ये आपके क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम का एक पार्ट लेकर आपको दिखाया गया है कि ये DNA है हमारे पास, और DNA के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन कोड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन। DNA इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। As you have seen, an animal cell has a nucleus, cell membrane and cytoplasm. Just like a plant cell, these parts have similar function as those in a plant cells. However, unlike a typical plant cell, an animal cell does not have chloroplast. This is one reason why plant can make food using light energy, but animal cannot. The cell wall is also absent in an animal cell. This explains why animal cells do not have regular shapes unlike plant cells. In general, plant cells are bigger than animal cells. Okay, students, today your homework is you have to write the question on your notebook. What are the different parts of an animal? Also draw the diagram of the animal cell. The answer of this question is what are the different parts of an animal cell? You have also draw the diagram of animal cell. Answer of this question is some of the parts of a typical animal cells are given there. You have to write the date and day, chapter number, topic on your notebook and then you have write the question. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है न्यूक्लियस की, जैसे मैंने कल भी बताया था। पॉइंट नंबर 1 न्यूक्लियस है आपका, इसमें आपने इन सारी लाइंस को इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखना है और ब्रीफ करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 2 लिखना है साइटोप्लाज्म, फिर आपने उसकी भी ऐसे ही पॉइंट्स बनाने हैं जैसे मैंने कल आपको पॉइंट्स बनाना सिखाए थे, वैसे ही आपने हेडिंग्स देनी है और इनके पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और डायग्राम ड्रॉ करके आपने जो आपका ब्लैंक साइड है आपकी नोटबुक की, उसके ऊपर आपने यहाँ पे बॉक्स बनाकर इस इंफॉर्मेशन को लिखना है, कलर करने हैं आपने, इंफॉर्मेशन को लिखना है और यहाँ पे डायग्राम बनानी है। आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग क्लास में ही काम करते थे, सेम आपने वैसे ही काम करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। आपने ये पैराग्राफ उसमें लिखना है।
एन एनिमल सेल डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यह आपने पॉइंट्स में लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है द सेल वॉल इज़ आल्सो एब्सेंट इन द प्लांट सेल, पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 है द प्लांट सेल्स आर बिगर देन एनिमल सेल्स, ये आपने इनको पॉइंट्स में लिखना है अंडर द क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। स्टूडेंट्स, आपने ये सारे काम साथ साथ याद भी करने हैं और इनको नोटबुक पर अच्छे से भी लिखना है। जो हमारी एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह हम स्कूल खुलने के बाद उन एक्टिविटीज़ को अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।